There are two things I want to bring to your attention, अध्यक्ष. बार बार डीएमके के सदस्य, बार बार कांग्रेस के जो साउथ से जो एमपीज आते हैं, वो हिंदू इंपोजिशन के बारे में बात रखते रहते हैं. कार्ति जी भी है. He also keeps speaking about Hindi imposition. I want to tell you through this August House through you, Adhyaksh. I come from Karnataka. My mother tongue is Kannada. I do not want any kind of Hindi imposition. And if there is one party that has resisted Hindi imposition, has been against imposition of any kind, has always supported the vitality, diversity of various languages in India, it is my party, the Bharatiya Janata Party. I want to give you one example from the Constituent Assembly. Now, because this, Adhyaksh, I'll just take 2 more minutes, because this is a very important issue. Okay. Even yesterday, there were members of the DMK, there were members of the Congress party who created this argument about Hindi imposition. When the debate was being held in the Constituent Assembly, Adhyaksh, on what should be the official languages of India, it was Shyama Prasad Mukherjee, who was the founder of the Bharatiya Janasangh, the earlier avatar of the Bharatiya Janata Party, who said this, and I quote, "Some of my friends spoke eloquently that a day might come when India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view. And when I say so, I am not ignoring the essential need for creating that national unity of India, which must be the foundation stone in our future reconstruction. That unity must be achieved by allowing those elements in the national life of our country, which are today vital to function, and function in dignity, harmony, and in self-respect. Today, it stands to the glory of India that we have so many languages from the north to the south, from the west to the east, each one of which in its own way has made contributions which have made Indian life and civilization what it is today. If it is claimed by anyone that by passing an article in the Constitution of India, one language is going to be accepted by all by a process of coercion, I say, sir, that will not be possible to achieve. Unity in diversity is India's keynote and must be achieved by a process of understanding and consent, and for that a proper atmosphere has to be created." This was the position of the Janasangh and Shyama Prasad Mukherjee. This is still our position, Kartiji. I will tell you why. I will tell you why. And I will tell you why it was your party, the Congress party, which was the original party of imposing Hindi on the southern language, in the southern states. Adhyaksh ji, पिछले 70 साल में, the last 60 years, Adhyaksh ji, the Congress party got 4 opportunities to draft the country's national education policy. And every time, the Congress party's national education policy came with a 3-language formula. And what were these 3-language formulas? In all the non-Hindi speaking states, Hindi was made compulsory. Who made these policies? It was Jawaharlal Nehru, it was Indira Gandhi, it was Rajiv Gandhi, and it was not reviewed by Manmohan Singh. For the first time, through the national education policy of 2020, Narendra Modi government has changed this compulsory Hindi policy and made study of any regional language of India possible. We have for the first time introduced provisions to study higher education in mother tongue. Now, please. We have made it compulsory to make primary education in mother tongue. Kartiji, these are the facts that are staring at you and your party. So please stop the bogey that the Bharatiya Janata Party is the party that imposes Hindi. Stare at the facts that are staring you. Acknowledge that it was your party that imposed Hindi coercively on the non-Hindi speaking states of the country. For almost 70 years, the country waited for a decisive action on Kashmir, on Article 370. But multiple governments that came took no action, and the country was literally bleeding by 1,000 cuts. पर जो 70 साल से नहीं हुआ था, उसको इसी सरकार ने इसी टर्म में आर्टिकल 370 को दुरुस्त कर
70 साल के समस्या को हमने समाधान दिया। लगभग 40 साल से अधिक समय से अपने करोड़ों करोड़ों जवानों ने ओआरओपी का हक मांग रहा था, बट ओआरओपी का समस्या भी ऐसे ही पोस्टपोन होते जा रहा था। 40 साल के समस्या को भी ओआरओपी का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अपने सरकार ने किया है। कारगिल युद्ध के समय के बाद से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने का मांग देश में था। लगभग 20 साल से यह मांग भी पोस्टपोन होते जा रहा था। सरकारें आई, सरकारें चली, बट इंडिया's डिमांड ऑफ अ strong, coordinated chief of defense staff and creation of this institution was not met. But इसका भी समाधान नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ और आज मल्टीपल थिएटर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ if India can answer the external efforts and attacks, it is because we created the institution of the chief of defense staff. कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के समस्याएं थे, वो नागा अकॉर्ड हो, बोडो के इश्यू हो, मिजोरम के इश्यू हो, मणिपुर के इश्यू हो, बांग्लादेश से जुड़े हुए लैंड एग्रीमेंट हो, ये सभी इश्यू 70 साल से पेंडिंग था। आज नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अपने प्रदेशों में आज शांति के व्यवस्था आज हो चुके हैं, तो इसका समाधान भी नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में हुआ है। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, ये तो 50 साल, 70 साल, 40 साल का समस्या था। 500 साल से देश के समाज, देश के हिंदू समाज, भारतीय समाज अयोध्या के राम मंदिर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए वो प्रतीक्षा में थे। और ये कहते हुए गर्व है कि हम सब के वोट के वजह से जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार सत्ता में आई, इस सरकार के प्रयासों से 500 साल के जो अपने प्रतीक्षा थे वो भी समाप्त हो गए और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गवर्नमेंट। सो मोदी जी आने से पहले समस्या थी और मोदी के बाद समाधान है। ये बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी के फर्क है। अध्यक्ष जी, इस सरकार के सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज द फैक्ट दैट वी हैव लिफ्टेड 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। और अध्यक्ष जी, ये जो अचीवमेंट है, इसका ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पता चलता है कि ना यूरोप में, ना चीन में, ना यूनाइटेड स्टेट्स में इतने बड़े आबादी को इतने कम समय में गरीबी से बाहर ले आने का काम विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है। पहली बार जो हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है। और मेरे से पहले जो राजेंद्र अग्रवाल जी बात कर रहे थे, स्पीकर साहब बात कर रहे थे, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अध्यक्ष जी, अपने सरकार आने से पहले तक देश के मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। और जब देश के जनता के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है तो वो गरीबी से बाहर कैसे आ सकता है? देश के फॉर्मल इकोनॉमी से कैसे वो जुड़ पाता है? और पिछले 10 साल में हम 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़कर हम फॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से उनको भले करने का, गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया। And when somebody gets connected to the banking system, Adhyaksh ji, it is very natural that they get introduced to a lot of other formal products. देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज था, परकोलेशन जो था, वो अत्यंत कम था। पर ये जनधन अकाउंट में लगभग 50 करोड़ जनता जुड़ने के बाद इंश्योरेंस का भी कवरेज देश में ज्यादा हो चुका है।
वो आयुष्मान भारत हो सकता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो सकता है, या 20 रुपए में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जी के मिल रहा है वो हो सकता है। ऐसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देश के एलीट वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को पहली बार देश के गरीब तक पहुंचाने का काम अपने सरकार ने किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। अध्यक्ष जी, अपने पहले टर्म में जो पिछले 75 साल के 70 साल के जो कमियां थी उसको हम सुधार किए। मोदी जी के सेकेंड टर्म में आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, या आज ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल भी हमने पेश किए हैं। ऐसे जो अपने कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा थे उसका भी काम करने का काम दूसरे टर्म में हमने किया। और आने वाले दिनों में और मोदी जी के तीसरे टर्म में विकसित भारत का फाउंडेशन जो है और एस्पिरेशनल ड्रीम्स को फुलफिल करने का काम भी इस सरकार ने करेगा। दिस इज द मैसिव चेंज दैट द कंट्रीज पॉलिटी हैज सीन इन द लास्ट 10 years। इसलिए देश के युवा कह रहे हैं, मोदी से पहले देश में गरीबी था, मोदी के बाद देश में समृद्धि है। बिफोर मोदी देयर वाज पॉवर्टी, आफ्टर मोदी देयर इज प्रॉस्पेरिटी। दिस इज द चेंज द मोदी गवर्नमेंट हैज सीन इन द लास्ट 10 years। अध्यक्ष जी, ये गरीब कल्याण रेवड़ी बांटने से नहीं हुआ है। ये गरीब कल्याण गरीबों को सरकार के ऊपर परावलंबित करने से नहीं हुआ है, पर मोदी जी देश के गरीबों को आत्मनिर्भर करने का, स्वावलंबन करने का एक नया तरीके के साथ मोदी जी ने काम किए। मैं आपको अध्यक्ष जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश का भी ध्यान इस विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। ये क्या है मोदी जी के विजन, मोदी सरकार के इकोनॉमिक अप्रोच और बाकी पार्टियों के अप्रोच में फर्क क्या है? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो नए स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोदी जी ने लॉन्च की है। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम देखे हैं अध्यक्ष जी, पिछले 2-3 जनरल स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक चुनाव से पहले जनता के पास ये जा रहे हैं और वादा दे रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट हम फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये रेवड़ी बांटने का काम ये कर रहे हैं और सरकार के ऊपर गरीबों को निरंतर अवलंबित करने का काम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पर मोदी जी अवलंबित करना नहीं चाहते, परावलंबी उनको करना नहीं चाहते, स्वावलंबन करना चाहते। इसलिए पीएम सूर्योदय योजना में हमें गरीब के घर पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, सब्सिडी देंगे, उनको ताकत देंगे। Not only that he can save 200-300 units of electricity so that 300 units of electricity will become free, but he can also earn additional money because of that solar rooftop. ये अपने इकोनॉमिक अप्रोच में फर्क है। हम गरीब को गरीब रख के उनको वोट बैंक बनाकर कैरियर से अपने पॉलिटिकल फायदा उठाने का सोच भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार नहीं करते हैं। हम गरीब को स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनाकर उनको ताकत देने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। इसलिए देश के युवा कह रहे हैं, मोदी से पहले गरीब परावलंबी था, मोदी के बाद देश के गरीब स्वाभिमानी है और देश के गरीब आत्मनिर्भर है। दिस इज द डिफरेंस बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के इतिहास में लगभग पिछले 70 साल में मोदी से पहले देश में जो राजनीतिक परिभाषा था सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर, वो इतना परवर्टेड हो चुका था, इतना उसमें अडल्ट्रेशन आ चुका था कि उसका जो मूलभूत विचार था, संविधान के जो मूलभूत विचार था, वो ही अडल्ट्रेट हो चुका था।
the perverted discourse over the last 6 decades by perverting and adulterating the very definitions of secularism and socialism in the country. Two big losses the country had to face. By a perverted definition of secularism, the country culturally lost a lot, and by a perverted communication commentary of socialism, the country lost economically. मैं एक दो उदाहरण ही देना चाहता हूं अध्यक्ष. क्यों इतने समय तक, आजाद होने के बाद 70 साल तक क्यों इतने बड़े संख्या में गरीब देश में थे? क्या कर रहे थे पिछले इतने सरकारों में? जितने भी सरकार आए वो वेल्थ क्रिएटर्स को, उद्यमशीलता को हम एनकरेज ही नहीं किए. अभी अभी 1-2 महीने पहले इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी ने एक इंटरव्यू में बोले कि जब वो इंफोसिस शुरू किए और जब इंफोसिस के लिए कंप्यूटर यूएस से इंपोर्ट करने के लिए वो प्रयास किए, वो सिर्फ कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने के लिए दिल्ली को लगभग 50 बार आना पड़ा और 3 साल लगा 50 कंप्यूटर अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए. इस प्रकार के एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी देश में इन लोगों ने जारी रखे थे. उसके वजह से देश के युवा ना एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, देश के इकोनॉमी ना इंप्रूव होता था. इस प्रकार का एक शैकलिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट देश में हुआ था. बट आज मोदी जी आने के बाद for the first time these fetters, these shackles, these chains that had kept the entrepreneurial spirit of the country tied, these have been removed, and as a result 100 से ज्यादा जो अपना स्टार्टअप तब थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं और देश को समृद्ध बनने के काम में आज के स्टार्टअप्स हैं. अध्यक्ष जी, मैं 3-4 ही और विषय आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं. और अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में भी उल्लेख किए. अध्यक्ष जी, इस साल के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए धनराशि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने रखे. 1 लाख करोड़ रुपए. दिस इज मेकिंग इंडिया फ्यूचर रेडी एंड फ्यूचर प्रूफ. ये पहली बार देश के युवाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए इतना बड़ा धनराशि का सपोर्ट देश में मिल रहा है. शायद खास पहले जो सरकारें थे इस प्रकार के सपोर्ट दिए होते, इंडिया वुड हैव emerged already as a technological superpower in the world. Because they did not do it in many areas, India has to play catch up today. And because we are correcting that wrong and we are making that course correction, whether it is in artificial intelligence, whether it is in quantum computing or any other emerging technology, India will be a world leader in the coming days because अपने सरकार ने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किए. अध्यक्ष जी, ये सेक्युलरिज्म का परिभाषा, ये भी देश में एक प्रकार के कल्चरल कॉन्फिडेंस कम करने का काम किया. मैं दक्षिण भारत से आता हूं अध्यक्ष, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक जो नैरेटिव देश में खड़ा किया गया है, विशेष रूप में पिछले 2-3 साल से, कि दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है, और दक्षिण भारत में हिंदी का इंपोजिशन हो रहा है. इस प्रकार का कई सारे भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने कर रहा है. मैं अध्यक्ष जी एक और बात पे भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं. कल कर्नाटका से जो एमपी थे, कांग्रेस पार्टी से एमपी, वो दक्षिण भारत के प्रत्येक राष्ट्र मांगने का काम भी कल उन्होंने किए. इससे बड़ा अगौरव इस सदन के प्रति क्या हो सकता है? I am astounded, Adhyaksh ji. I am ashamed. I am ashamed that a sitting member of parliament has not only violated his oath, but has also betrayed the true intention of the Congress party by demanding a separate nationhood for the southern states of India.
There are two things I want to bring to your attention, अध्यक्ष. बार बार डीएमके के सदस्य, बार बार कांग्रेस के जो साउथ से जो एमपीज आते हैं, वो ये हिंदू इंपोजिशन के बारे में बात रखते रहते हैं. कार्ति जी भी है. He also keeps speaking about Hindi imposition. I want to tell you through this August House, through you, Adhyakshi. I come from Karnataka. My mother tongue is Kannada. I do not want any kind of Hindi imposition. And if there is one party that has resisted Hindi imposition, has been against imposition of any kind, has always supported the vitality, diversity of various languages in India, it is my party, the Bharatiya Janata Party. I want to give you one example from the Constituent Assembly. Now, because please conclude. Adhyakshi, I'll just take 2 more minutes, because this is a very important issue. Okay. Even yesterday, there were members of the DMK, there were members of the Congress party who created this argument about Hindi imposition. When the debate was being held in the Constituent Assembly, Adhyakshi, on what should be the official languages of India, it was Shyama Prasad Mukherjee, who was the founder of the Bharatiya Janasangh, the earlier avatar of the Bharatiya Janata Party, who said this, and I quote, "Some of my friends spoke eloquently that a day might come when India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view. And when I say so, I am not ignoring the essential need for creating that national unity of India, which must be the foundation stone in our future reconstruction. That unity must be achieved by allowing those elements in the national life of our country which are today vital to function, and function in dignity, harmony, and in self-respect. Today it stands to the glory of India that we have so many languages from the north to the south, from the west to the east, each one of which in its own way has made contributions which have made Indian life and civilization what it is today. If it is claimed by anyone that by passing an article in the Constitution of India, one language is going to be accepted by all by a process of coercion, I say, sir, that will not be possible to achieve. Unity in diversity is India's keynote and must be achieved by a process of understanding and consent, and for that a proper atmosphere has to be created." This was the position of the Janasangh and Shyama Prasad Mukherjee. This is still our position, Kartiji. I will tell you why. I will tell you why. And I will tell you why it was your party, the Congress party, which was the original party of imposing Hindi on the southern language, in the southern states. Adhyaksh ji, पिछले 70 साल में, in the last 60 years, Adhyaksh ji, the Congress party got 4 opportunities to draft the country's national education policy. And every time, the Congress party's national education policy came with a 3-language formula. And what were these 3 language formulas? In all the non-Hindi speaking states, Hindi was made compulsory. Who made these policies? It was Jawaharlal Nehru, it was Indira Gandhi, it was Rajiv Gandhi, and it was not reviewed by Manmohan Singh. For the first time, through the national education policy of 2020, Narendra Modi government has changed this compulsory Hindi policy and made study of any regional language of India possible. We have for the first time introduced provisions to study higher education in mother tongue. Now, please. We have made it compulsory to make primary education in mother tongue. Kartiji, these are the facts that are staring at you and your party. So please stop the bogey that the Bharatiya Janata Party is the party that imposes Hindi. Stare at the facts that are staring you. Acknowledge that it was your party that imposed Hindi on coercively on the non-Hindi speaking states of the country. No, Adhyaksh, I want to conclude only with one thing. पिछले 10 साल में एक कल्चरल रिनेसांस में देश में हुआ है, और एक कल्चरल रिनेसांस देश के युवाओं में विशेष रूप में एक नया आत्मविश्वास जागृत किया है, और ये नया आत्मविश्वास देश के हर प्रकार के इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ
we are witnessing this newfound self-confidence. Especially the world is taking note of this. And today India is not only exporting defense equipments, India is only not exporting automobile components. India is not only exporting electronic equipments. Speaker sir, India is today also exporting good governance models to the world, which the world is taking note of. For example, the world is taking note of how India managed COVID. The world is studying that model. The world is also looking at how India has set for itself and for its population a digital public infrastructure which is the best in the world. Many countries are drawing inspiration from this. Not just that, even legislative techno-legal solutions like the ones that we have devised in the data protection law are the ones that the world is taking inspiration from. मोदी से पहले अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी बनने से पहले हम गुजरात मॉडल से देश इंस्पिरेशन लेते थे। आज जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे, विश्व और अलग अलग प्रदेश इंडिया मॉडल से आज प्रेरित हो रहा है, भारत से प्रेरित हो रहा है। दिस इज द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। अध्यक्ष जी, आई वांट टू कंक्लूड विद जस्ट वन पर्टिकुलर कमेंट। कल जब निर्मला सीतारामन जी ने अपने बजट भाषण के कंक्लूजन में ये बोली कि 2024 में जुलाई में जब हम वापस आएंगे और विस्तार रूप में जो बजट हम पेश करेंगे, इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ आवर कॉन्फिडेंस। बट द ऑपोजिशन and its commentators inside and outside of the parliament kept commenting that this is arrogance. But ये arrogance नहीं है अध्यक्ष जी, ये कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि हम डिलीवर किए हैं, हम जो कहे हैं वो हम किए हैं। वी आर कॉन्फिडेंट अध्यक्ष जी बिकॉज हमने 50 करोड़ जनधन खाते खोले हैं। हम वापस आने में विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि हम 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पिछले 10 साल में किए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश में 30 करोड़ से ज्यादा मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन हमने सैंक्शन किए। 43 करोड़ मुद्रा योजना लोन। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हम 30 लाख से ज्यादा धनराशि डीबीटी के माध्यम से देश में हम बचाएं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा गरीब महिला को हम पहली बार एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पहली बार एक मकान दिलाने का काम हमने किए हैं। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश के 50 लाख से अधिक रेल पटरी वाले जो छोटे 78 लाख से ज्यादा पीएम स्वनिधि लोन ऐसे छोटे दुकानदार को हमने दिए हैं। 15 करोड़ से ज्यादा जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के गरीबों के घर पे पहली बार नल से जल ले आने का काम भी हमने किए हैं। इसलिए हम कॉन्फिडेंट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, देश के युवा आज कह रहे हैं कि देश बदल चुका है और देश बदल रहा है। मोदी से पहले और मोदी के बाद देश बहुत बदल हो चुका है। मोदी से पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है। मोदी से पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है। मोदी से पहले मलिनता थी, मोदी के बाद स्वच्छता है। मोदी से पहले विवाद था, मोदी के बाद विश्वास है। मोदी से पहले तंबू था, मोदी के बाद भव्य मंदिर है। मोदी से पहले आतंक था, मोदी के बाद शांति है। मोदी से पहले गरीबी थी, मोदी के बाद समृद्धि है। मोदी से पहले बेरोजगारी थी, मोदी के बाद कौशल विकास है। मोदी से पहले अपराध था, मोदी के बाद सुरक्षा है। मोदी से पहले विभाजन था, मोदी के बाद एकता है। मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है। मोदी से पहले अव्यवस्था थी, मोदी के बाद व्यवस्था है। मोदी से पहले अन्याय था, मोदी के बाद न्याय है। मोदी से पहले तुष्टीकरण था, मोदी के बाद सबका साथ सबका विकास है। मोदी से पहले परिवारवाद था, मोदी के बाद लोकतंत्र है। मोदी से पहले भय था, मोदी के बाद धैर्य है। मोदी से पहले परावलंबन था, मोदी के बाद आत्मनिर्भरता है। ये
भारत में जो पिछले 10 साल में परिवर्तन हुआ है, ये पिछले 10 साल का परिवर्तन है अध्यक्ष जी. With full confidence that the people of India and 140 crore Bharatiyas will bless the Prime Minister for a historic third term. I thank you for giving me this opportunity to speak and thank the Honorable President.